Next is of vacuole. Vacuoles, normally it is absent in prokaryotes. Prokaryotic cell. Absent in prokaryotic cells. In plants, in animal cell, small and many. In plant cell that is small and many, but in animal cell it is small in size और संख्या में बहुत ज्यादा होती है. In plant cell one and big large vacuoles. The maximum more than 50% part of the plant cell occupied by the vacuoles, and its membrane is known as tonoplast. Membrane, that is tonoplast. The membrane of vacuoles known as tonoplast. It is the semi-permeable selective permeable membrane. Inside the vacuoles, cell shape is filled, which contain water, minerals and other waste substance, which is waste for the plants, waste substance present inside the. It also help in the maintain the size of cell, or also maintain the turgor pressure of the cell. जो प्रेशर होता है सेल का, सेल की जो शेप होता है वो मेंटेन करके रखती है. जब प्लांट सेल वाटर अब्जॉर्ब करती है तो वैक्यूल्स स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है, और प्लांट सेल का शेप जो है प्रॉपर रहता है. अगर इसमें से पानी बाहर निकल जाता है तो वो क्या होती है, विल्टिंग वाली पोजीशन, और प्लांट सेल का शेप जो है वो प्रॉपर नहीं रह पाता है. तो इट स्टोर द वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर, सरप्लस वाटर, मिनरल्स, and also maintain the shape of the cell or shape of that organs. The next is of difference between plant and animals. Plant cell and animal cell. Difference. If we see the difference between plant cell, first one is of cell wall present in plant cell. Here absent. Cell wall absent in the animal cell. Second one is of plastid present. And in animal cell, plastid absent. In plant cell, vacuole single and large, many and small, बहुत ज्यादा होती है, and small vacuoles present होती है किसमें, inside the animal cell. Another difference, that is of centriole absent. And here centriole present in the animal cell. Animal cell में centriole present होता है, plant cell के अंदर centriole normally absent होती है. Then mitochondria. Less in number. But in animal cell, more in number. In mitochondria, more in number. In animal cell, plant cell, that is less in number. Nucleus present lateral side. Present in lateral side. एक साइड में होता है, सेंट्रली प्लेस्ड नहीं होता. इट इज सेंट्रली प्लेस्ड. सेंट्रली
बीच के अंदर होता है. Here if we see in plant cell, animal cell, the nucleus is of the largest cell organelles, but in plant cell largest is of vacuole, then to plastid. The largest cell organelles is of plastid in plant cell. So these are the difference between plant cell and animal cell. Cell wall present in plant cell, absent in animal cell. Plastid present in plant cell, absent in animal cell. Vacuoles single and large in plant cell, vacuole absent in animal cell. Centriole absent in plant cell, centriole present in animal cell. Mitochondria less in number in plant cell, mitochondria more in number in animal cell. And nucleus present in central, nucleus present in lateral position in the plant cell, but in animal cell that is centrally placed. These are the main difference of plant and animal cells. Next topic is of cell division. We can also known as cell reproduction. Cell reproduction or cell division means when the parent cell divide to form new daughter cells or two daughter cells or more than two daughter cells, that is known as cell division. Mainly the cell division is of two types, that is of mitosis, another one is of meiosis. Mitosis it is also known as equational division. Equational division, and meiosis is known as reductional डिवीजन. माइटोसिस की बात करें पहले, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है. यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर पेरेंट सेल में 2n है तो डॉटर सेल में भी 2n होगी, यानी पेरेंट सेल के अंदर 46 है तो डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 ही होंगे. यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम इन द डॉटर सेल एज कंपेयर टू पेरेंट सेल. पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर सेल में होंगे. इसमें क्रोमोसोम आधे नहीं होती है. ये कहां होता है, जो सेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है उनके अंदर होता है. यानी जहां पर ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन in which one parent is involved. One parent is involved in which mitosis is there. या फिर ह्यूमन बीइंग में देखें तो यहां पर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर है, सोमेटिक सेल्स के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस होता है. सपोज अपनी बॉडी ग्रो कर रही है, अपने नेल्स ग्रो कर रहे हैं, हेयर्स ग्रो कर रही है, स्किन ग्रो कर रही है, तो वो किसके थ्रू कर रही है, माइटोसिस के थ्रू कर रही है. क्यों, माइटोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन होता है तो सेम टाइप का डिवीजन होता है, 2n से 2n, यानी 46 क्रोमोसोम है पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल में भी 46 ही होंगे. तो यहाँ पर एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का होता है. यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे भी, यहाँ 2n है तो यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं डॉटर सेल में और पेरेंट सेल के अंदर. अब बात करें अपन रिडक्शनल डिवीजन की. रिडक्शनल डिवीजन यानी कम होना. यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, कम हो जाते हैं. पेरेंट सेल जितने रहते हैं, पेरेंट सेल में कितने 2n है तो डॉटर सेल में कितने रह जाएंगे n. पेरेंट सेल में अगर ये 46 है तो डॉटर सेल में कितने हो जाएंगे 23. जैसे कि जब गेमीट्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, एग्स बनते हैं, तो उनमें क्रोमोसोम आधे होते हैं पेरेंट सेल की तुलना में. और ये किसमें होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर ही ये होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं.
इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है। और जब भी मियोसिस होता है तो 2n से 2 सेल बनती है, पहले 2n, फिर इनमें वापस 2 सेल बनती है, दैट इज n और n। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, पेरेंट सेल से आधे हो जाते हैं एज कंपेरेटिवली माइटोसिस में सेम ही रहते हैं, परंतु यहाँ पे पेरेंट सेल में 2n है तो डॉटर सेल में n ही रह जाते हैं। जैसे यहाँ पेरेंट सेल में 46 है तो कितने हो गए, फर्स्ट डिवीजन हुआ उसमें 46 ही रहते हैं, उसके आगे होते हैं तो 23 और 23। तो यहाँ पर एक मियोसिस से कितनी सेल्स बनती, 4 सेल बनती है। यहाँ एक माइटोसिस से 2 सेल ही बनती है। और ये कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर ही मियोसिस होता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सेल्स है टेस्टिस और ओवरीज। जब स्पर्म बनते हैं तो मियोसिस होती है, एग बनते हैं तो मियोसिस होती है। बाकी बॉडी के अंदर जितना भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो सारा किससे होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। तो सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, एक मियोसिस होता है, दूसरा माइटोसिस होता है। मियोसिस हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, माइटोसिस हमेशा नॉर्मल सेल्स के अंदर वेजिटेटिव सेल्स में होता है, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी एक सिंगल पेरेंट न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और उसके अंदर क्या कहते हैं, जो माइटोसिस के थ्रू वो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू टाइप्स ऑफ सेल्स का प्रोडक्शन करता है। अगर अपन डिफरेंस भी देखें मियोसिस और माइटोसिस के अंदर, दोनों में डिफरेंस देखें तो यहाँ देख सकते हैं अपन, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन, इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम। will be same in parent cell, same in daughter cell, number of chromosome half in daughter cell, यहाँ 2 cell produce after mitosis, 2 cell produce, यहाँ पे 4 cell produce, 4 cell produce after division. Next, it is occur in vegetative cells. Reproductive cells, meiosis, reproductive cells, इसमें वेरिएशन नहीं आते हैं, चेंजेस नहीं आते हैं। हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप, परंतु यहाँ बताता वेरिएशन नहीं आते हैं, वेरिएशन इज नॉट अकर। और वेरिएशन अकर, variation occur in the meiosis. So these are the difference between meiosis and mitosis.